علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا واضح رد کر رہے ہیں، صریح رد کر رہے ہیں۔ اور پتہ نہیں مجھے کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ اپنی رائے دیں، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی۔ اب دیکھیے جہاں پر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو وہ محال کہہ رہے ہیں تو میرے کو اس کے بعد آپ کو وہ یعنی مگر ایسے اعمال پر یقین شفا ہونا ہی محال ہے، اس حد تک واضح عبارت کے باوجود بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی سید دیدار علی شاہ صاحب نے غلط بات کی۔ وہ جو انہوں نے تعلیق بالمحال یعنی اس میں ابھی آپ تعریف پوچھ رہے تھے، آپ تعریف پڑھیں، کیا تعریف ہے؟ تعلیق بالمحال یہ ایک فقی اور اصولی اصطلاح ہے جو عام طور پہ اصول فقہ میں جو ہے وہ کتابوں میں استعمال ہوئی، عربی میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس اصطلاح کا ذکر کتابوں میں ہوتا ہے کہ جو ممکن ہی نہیں ہے، جو محال ہے، اور یہی سید صاحب نے نیچے لکھا ہے کہ ایسا محال ہے۔ اور وہاں جو فتاوی بعد میں ابھی میں ہوں اصل عبارت آپ کو دکھائیں گے، وہاں پر بھی یہ نہیں ہے جس طرح انداز آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے عبارت اسے لکھو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو علم ہو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم ممکن ہی نہیں ہے، اور اردو کا اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ نے خود کہا ہے کہ واضح طور پر وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ محال ہی نہیں۔ اور میں ابھی چلا گیا تھا، آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی سید صاحب سے غلطی ہوئی ہے اور سید صاحب نے غلط لکھا ہے۔ نہیں، یہ تو میں غلام رسول سیدی صاحب کی بات کوٹ کر نہیں، رہا ہوں۔ میں نے پھر ان کی امام نظر میں دیکھیں ان کی میں نے اس وقت جواب دیا، سیدی صاحب تو امام بخاری کے اوپر بھی کلام کر رہے ہیں، امام مسلم پر بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو والی روایت میں نہیں مانتا، اور قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام بخاری سے صاف ہوا ہے، امام مسلم سے صاف ہوا ہے۔ یہ ان کی رائے ہے نا، آپ اس سے متفق ہو سکتے ہیں یا ہاں نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل۔ ہاں ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سیدی صاحب کی رائے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سید صاحب نے، سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر یہ صفحہ میرے سامنے، اور میں پھر آپ پر بھی مجھے اب حیرت ہو رہی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جو ایک آگ لگی تو اس میں نے کو 4 دفعہ پڑھا نہیں تھا۔ نہیں ایسے نہیں، احمد نذیر صاحب آپ بھی بعض اوقات جو ہے نا سادگی میں بہت کچھ کر جاتے ہیں، کیسے ابھی جیسے آپ نے کیا ہے، جب میں آپ کو کلوز کر کے گیا تھا کہ آپ اس عبارت کو روک دیں، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ابھی میں نیچے سن رہا تھا، اوپر میں اس لیے آیا ہوں، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ کسی اور موقع پہ کر لیں گے، لیکن آپ نے پھر کیا کیا ہے؟ نہیں، اس پر اب لوگوں نے جو آئے ہیں ان لوگوں کو کمنٹ چھوڑے نا، بنا۔ پھر لوگوں پر جائیں آپ لوگ۔ آپ کی اور میری بات ہوئی تھی نا، تو آپ کہتے جی شاہ صاحب اور مجھے روک کر گئے ہیں کہ ہم نے آگے بات نہیں کریں، لیکن آپ نے پھر وہیں سے لگایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سید آپ دیدار تو علی شاہ صاحب نے، سید دیدار علی شاہ صاحب نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب کے سامنے احمد نذیر صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ شاہ صاحب، آپ ان کے میری اور مقابلے اپنی میں گفتگو دیکھیں آپ کے یہاں علامہ احسان علیہ ظہیر لکھے، ٹھیک ہے، اب احمد نذیر صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب پر لگائیں گے فتویٰ؟ نہیں، میں فتویٰ نہیں لگا رہا شاہ صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ تعلیق بالمحال نہیں ہے آپ جو کی انہوں نے نظر میں تعلیق نہیں کی ہے تو ہماری نظر میں ہے۔ ہاں ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا، یہ ہاں کچھ تو آپ اپنی بات کریں، نہیں دیکھیں اس میں آپ لڑائی والی کون سی بات ہے شاہ لڑائی صاحب؟ والی میں بات یہ ہے کہ آپ نے جنرلائز کر دیا جناب، وہاں سنیں بنتی سنیں نہیں ہے۔ سنیں شاہ آپ صاحب، یہ کہتے، دیکھیں میری بات سنیں، سنیں آپ شاہ یہ صاحب، کہتے غلام آپ رسول یہ سعیدی کہتے صاحب کو یہ حدیث ہے، میری بات تو سنیں نا۔ غلام رسول سعیدی صاحب جن کی بات کی میں تائید کر رہا ہوں، کیا میں ان کا فالوور ہوں اس لیے میں تائید کر رہا ہوں؟ وہ دونوں ہی حنفی ہیں، میں ان کی بات کو درست سمجھتا ہوں، ان کی بات کو غلط سمجھتا ہوں، وہ کیا میرے سید پاس کوئی انہوں نے ثابت جرم عائد ہوتی ہے؟ ایک سمپل جواب دے دیں، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے فتاوی دیداریہ پڑھ کر کوئی کمنٹ کیا؟ نہیں، جو انہوں نے اس پر بات کی نہیں ہے ایسے نہیں، عامر نذیر صاحب ایسے نہیں، میں سمپل دیکھیں 2 اور 2 4 والی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بات تب درست ہوتی علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ کی اگر وہ یہ فرماتے شرح صحیح مسلم یا شرح صحیح بخاری یا تبیان القرآن میں وہ فرماتے میں نے فتاوی دیداریہ پڑھنے کے بعد اس میں یہ بات غلط تھی، تو پھر آپ کی بات درست ہوتی۔ نہیں، بات تو جب فتاوی انہوں نے دیداریہ کی ہے نا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بات اور کر رہے ہیں، شاہ صاحب۔ جو فتاوی عالمگیریہ میں، فتاوی شامی میں جو فقہا نے لکھا ہے اس کی جو سمجھ لوگوں کو آ رہی ہے وہ اس سے نعوذ باللہ منہا کہہ رہے ہیں۔ شاہ صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فتاوی دیداریہ کی اپنی بات تو ہے ہی نہیں نا، فتاوی دیداریہ والے تو اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، لیکن ایک کمنٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے سعیدی صاحب نے بھی اس پہ ایک کمنٹ کیا ہے، دونوں نے کمنٹ کیا ہے، ایسا ہی ہے نا، عبارت تو ان کی نہیں ہے نا، عبارت تو ہے ان کی۔ سیدی صاحب نے وہاں تعلیق بالمحال لکھا ہے،
नहीं 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 नहीं, तलीक बिल मुहाल उन्होंने तो कहा सीधा सीधा फिर देखे ना अदल से नाम नजीर साहब मेरी बात सुने, तलीक में बनती नहीं ना, मेरी मेरी बनती है ना, क्यों नहीं बनती है, बनती है इसलिए बनती है। मैं अर्ज करता हूँ उन्होंने सैयद साहब ने मिसाल दी, उनकी मिसाल अब कोड नहीं कर रहे। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है जो हजरत सैयद दीदार अली शाह साहब अलैहि रहमा ने जो एग्जाम्पल दी उस मिसाल की तरफ आप नहीं आ रहे। साहब वो मिसाल उन्होंने ये दी है, तलीक बिल मुहाल की दी है ना, हाँ दी है ना, तो महाल देखे नामुमकिन। शाह साहब ये तलीक बिल मुहाल की जो उन्होंने मिसाल दी है वो उस वाली बादशाह वाली हफ्ता कलीम वाली, वो मिसाल तो उन्होंने साबित करने समझाने के लिए दी है कि तलीक बिल मुहाल क्या होती है। तलीक बिल मुहाल भी मैं और आप कह रहे हैं, उन्होंने तलीक बिल मुहाल भी मेरा ख्याल है वहां पर नहीं लिखा हुआ नहीं, देखें यही तो आप ज्यादा लिखा है, सफर लिखा हुआ नहीं, ऐसा ना देखिए आमिर नजीर साहब, यही आप अपनी प्लीज ऐनक बदलें, जैसे आप अपने बुजुर्गों देखें, आप अपने बुजुर्गों मेरे सुने ना बात सुने, अब जैसे आप अपने अकाबर की इज्जत चाहते हैं ना और चाहनी चाहिए, इसी तरह दूसरों के अकाबरीन की भी इज्जत करना प्लीज सीखें। अभी आप देखें मैं इज्जत से मैं अच्छा मेरी बात सुनते हैं कि आप देखें नहीं सुने इख्तलाफ करना नहीं, इख्तलाफ करें लेकिन अभी आप कह रहे हैं, आप कहते हैं मैंने 4 दफा पढ़ा है, और अभी आप कह रहे हैं वहाँ तालीक बिल महाल का लफ्ज नहीं, यार अजीब उन्होंने इसको तलीक बिल महाल ही करार दिया अभी आप नहीं अभी आपने ये कहा, देखिए सुनिए, आपने कहा वहाँ तालीक बिल महाल का लफ्ज ही नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह यार, ऐसी बात तलीक बिल महाल उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है ये इस्तिलाह इस्तेमाल किया है, फिर आप कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया इस्तेमाल। मेरी बात सुने, दीदार अली शाह साहब से इख्तलाफ करना कुफर है नहीं, लेकिन जितनी जो लेकिन कुफर नहीं मैं बता नहीं कुफर नहीं बिल्कुल नहीं सुने, लेकिन जो मैंने ये कह दिया है कि नहीं मेरी अर्ज सुने ना, लेकिन जो ये दुरुस्त नहीं है, मेरी अर्ज सुने ना, लेकिन जो बात ओह मेरी बात सुने ना, जो बात मुसन्निफ ने ना कही हो, मुतकल्लिम ने ना कही हो, दूसरा उन पर जड़ दे, ये बुहतान है। जो सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखे, क्या शरा करने का उनको हक है या आपको हक हासिल है? नहीं हक है, उनको जो मर्जी करें। आप कह रहे हैं तालीम हमें उनके साथ इख्तिलाफ करने का हक है कि नहीं है? मैं तो बताता हूँ, सुने आप तवज्जो से सुने, जब ये सफा 693 पढ़ रहा हूँ, जब ये जाहिर है कि बवजह कुफर होने के कोई मुसलमान, ये अल्फाज आपको नजर नहीं आते? सर पढ़ लिया मैंने, देख नहीं आपने नहीं पढ़े ना, आप मेरे जाने के बाद पढ़ रहे थे ना। असल मुझे अफसोस पता है कि अहमद नजीर साहब आप पर, मैं गालियों का सख्त मुखालिफ हूँ, हत्ता कि काफिर भी कोई हो, मुल्हिद भी हो, मैं उसको दलील से गालीबाजों के पास जाके बैठना नहीं चाहिए शाह साहब, आप भी बैठते रहे, मेरी बात सुने, उसको छोड़े, इनके साथ मैं बैठता हूँ, जब से उन्होंने गालियां दी 1 साल हो गया, कभी शक्ल चले छोड़े उस बात को, छोड़े। मैं आज अस्कानी साहब ने जो बात आपके सामने वहां पर गालियां दी जाती, मेरे सामने कुछ नहीं, मैं जब गया हूँ पूछ ले साहब से, मैं गया हूँ, मैं सुनता रहा बाद में, मेरी बात सुनी ना, मेरी बात सामने राव नईम ने इनको गालियां दी हैं, मैंने नहीं सुनी। अच्छा मेरी बात सुने, आप वहां मौजूद थे, आप कहते हैं मैंने बिल्कुल पूछ ले उनसे, मैं गया हूँ, आप पर इल्जाम लगाऊं क्या? नहीं मेरी बात तो सुने ना, आप थे, मुझे नहीं पता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, आपके जो पॉलिटिक्स है वो पहले भी होते रहे, लेने देने, और मेरी बात सुने ना, मेरी बात, आपके पैसे लेन देन धंधा फलां बीबी उधर, मुझे कभी देखा है ऐसी? कौन से जो भी लोगों से क्या लेना देना पैसों का? यार मेरी बात तो सुने ना, तो मिर्जाइयों के साथ मसला इनका क्या? और नहीं मेरी बात जो भी है, मैं उसमें शिरकत नहीं करता। इल्मी जब बात हो रही थी वहां पर सैयद दीदार अली शाह साहब अलैहि रहमा पर बोतान बांधा जा रहा था, मैं गया हूँ, किताब पीर अस्कानी साहब ने झूठ बोला, वाज़ेह तौर पर झूठ बोला उनकी किताब। अच्छा मैं पढ़ता हूँ, आप सुने, अब आप नहीं वो सुन लिए 4 दफा, आप बात करने दें। नहीं मैं आपसे नहीं सुना ना, आपने फिर लेना शाह साहब, आपने फिर गलत बयानी की 2 मिनट से बात करते हुए सुन तो ले, मामूली सी तलखी होती है, मैंने देखा आप ब्राड छोड़ देते हैं, वहां पर राव ने तो गंदी गालियां दे रहा था, आप नहीं उतरे नीचे। मैंने नहीं कोई गंदी गाली मैंने नहीं सुनी है, आपने नहीं सुनी तो मेरी बात सुने उधर क्या हुआ है पूछ ले जाके, रिकॉर्डिंग है, लोगों की तालीम थी ना, वो गालियां नहीं थी, वो बुजुर्गाने भी दीन की तालीम थी। मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, वो मुहज्जब लोग हैं। अच्छा मेरी बात सुने, मैं देखे मैं बरौडों पर जाता ही नहीं हूँ, लेकिन अस्कानी साहब एक हमारे बुजुर्ग अकाबिर के ऊपर बोतान बांध रहे थे और मेरे पास वो किताब मौजूद थी, मैं उस वक्त गया हूँ, मैंने जाकर हवाला पढ़ा है, जवाब दिया, उसके बाद मैं आ गया हूँ, मैं उस बराड़ पर नहीं ठहरा, ये हकीकत है। अस्कानी साहब वहाँ मुनाजरा और दीगर करना, आपसे भी गुजारिश करूँगा, ये देखिए सफ़ा 693, जब जाहिर है कि बवजह कुफ्र होने के कोई मुसलमान ऐसा अमल का तजर्बा नहीं कर सकता, यही तो गलती है ना। का पहला सवाल, अब सुने ना मेरी बात सुने आराम से,
जिसमें कुरान मजीद की बेअदबी हो। ये अल्फाज नहीं नजर आ रहे आप हजरात को? हाँ आगे हाँ, चल। लेकिन यहीं से वो गलत ऐसे बात कर रहे हैं मामलात ना। में सुनिए आगे साहब, मेरा कहना का मकसद दुश्मनी अच्छा भी हो, आपका इख्तलाफ भी हो ना। शाह साहब, अगर इन्होंने दूसरे तरीके से गुफ्तगू करनी है तो मुफ्ती मुबशर शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, हाँ चले वो कर लेंगे। मैं हाफ सिर्फ ट्रीटमेंट करते मैं होते दो हैं। तीन मुफ्ती साहब आ गए, ठीक है, वेलकम मुफ्ती साहब आप। 4 दफा ये इबारत हमने आमिर नजीर साहब, आपने अगर 4 दफा, आप देखिए, मुझे बोलने देना, लेकिन मुझे अफसोस आमिर नजीर साहब आप पर ये है, अगर ये 4 दफा इबारत पढ़ ली गई तो मेरे जाने के बाद आपको इस इबारत पर तबसरा नहीं करना चाहिए साहब, था। आप मेरी और अपनी गुफ्तगू खत्म करके गए हैं कि इन लोगों पर पाबंदी लगा के गए हैं कि यहाँ पर गुफ्तगू नहीं मैंने करनी? आप और मेरे ऊपर तो पाबंदी थी ना, मेरे देखे, मेरे और आप अमर भाई 1 मिनट बात कर मेरे सकते और हैं? नहीं, मेरे ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं। आपने कहा हम बाद में बात कर हाँ लेंगे। तो हम जी आमिर से शाह जी 1 मिनट बात कर सकते हो? 1 मिनट। आपने मुझे आप कहा वहाँ पे कि ये पहुंचे गुफ्तगू यहाँ हैं, से जब रोक शाह जी कर आप ब्रांड पे वहाँ पे पहुंचे हैं, तो आप किस टाइम पे पहुंचे हैं? जब सैयद दीदार साहब की बात हो रही थी या उससे पहले पहुंचे हैं वहाँ पे? जब सईद दीदार शाह साहब की हो रही थी। जज़ाकल्लाह। तो इसलिए तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है ना, वो वहां तक बात गई क्यों? आप इसके ऊपर गौर नहीं कर रहे जी कि उन्होंने क्या तमाशबी नहीं की है उधर बैठ के? जी ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। अब आमिर जो नजीर समझने वाली बात है वो कोई भी नहीं कर रहा, और सिर्फ अपनी बातों के ऊपर ही बहस कर रहे हैं। जी ऐसा ही है। आमिर नजीर साहब, मैं आपके जोड़ कर उन घटिया लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया खुद है। जी ऐसे ही। अच्छा मेरी बात सुने। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं आपके जोड़ कर नहीं, मैं ये जो आपने मेरे जाने के बाद, आप अगर चाहते ना तो इसको रोक सकते थे कि जनाब शाह साहब मुझे मना कर गए कि आमिर नजीर साहब आपने भी नहीं करनी, मैंने भी नहीं करनी। आप उन्हें ये कह सकते थे कि मैं आपकी गुफ्तगू में शामिल नहीं होऊंगा, आप करते रहें, ठीक है ना। इस तरह का मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया। आपने मुझे कहा कि भाई हम ये गुफ्तगू कल या परसों दोबारा कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मतलब लेकिन ये मेरे तो से आप नहीं पाबंदी करेंगे, लगा दी। नहीं मेरे से नहीं करेंगे, डंडोरा फिर सारे जग में फेरेंगे। ये मसला। आप अगर मुझे कह जाते कि इस ब्राड पर इस गुफ्तगू को उमेंटी साहब क्या मफहूम था मेरा इनसे बात करने का? उमेंटी साहब आप बताएं। नहीं, आप मुझे ही मेरी अर्ज सुनिए। बताएं। देखें, मसला अगर हल हो जाए, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, कर ले, तो आप वो मुफ्ती साहब पीर करेंगे साहब मेरे। कब का वो दोहरा रहे थे, जी, भाग गया, अच्छा, ऐसा मेरे हो सईद गया। मुबशर अमर भाई, आपने शाह साहब बात कर ले, मुझे बस नहीं। मैं बस, मेरी बात खत्म है, 1 मिनट ठहरिएगा। अच्छा सुनिएगा जरा, आमिर नजीर साहब देख 1 मिनट, पहली सत्र में जिसमें कुरान मजीद शाह साहब की भी आमद है और सब एक तो तू सुने चुप कर, इनको, माशाल्लाह। वेलकम वो बंदा आखिर वेलकम, बिल्कुल वेलकम जना। आमिर नजीर साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट में उम्मीद करूंगा आप खामोश रहेंगे। अच्छा, और ऐसे मामलात में काफिर के कहने के एतबार तो ला महला, आमिर नजीर साहब कहते तालीक बिल महल नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। तो ला महला ये मसला अज किस्म तालीक बिल महल अल आदी हुआ, जैसे कोई किसी साइल से कहे कि अगर मैं हफ्त अकलीम का बादशाह हो जाऊं तो तुझको अपना सारा मालो मता दे दूं। इस कहने से तमाम अहले जुबान जानते कि कायल का यही मकसूद होता है कि ना मैं हफ्त अकलीम का बादशाह हूं, ना तुझको घर बार दूं। चुनाचे सुनने वाला इस कलाम को सुनकर फौरन कह देता है कि तुमको देना ही मकसूद नहीं। अल्लाह हाजा फुकहा का शिफाए यकीनी पर इस अमल का मुअल्लक करना दलील सरी है कि बयान इस हुक्म से मकसूद फुकहा बयान हुर्मती अमल मज़कूर ही नहीं बल्कि बयान करना इस अमर का है। ऐसे अमल का करना कुफ्र है। देखिए किस हद तक वो करे जी, कुफ्र है। माजरत से अमर भाई, अगर आप गुस्सा ना करें तो वो आप कह रहे थे वो जायज है, तो फिर वो टेस्ट कैसा होता है पेशाब का? चल बंदा बन जा मुफ्ती पहले साहब। मैं, अच्छा सही, मुफ्ती साहब, मुफ्ती सैयद मुबशर शाह साहब आ गए आप? मुफ्ती साहब हैं? मुफ्ती सैयद मुबशर शाह साहब जी वाले आप तशरीफ लाएं, आपने सुन ली होगा तो आगे कंटिन्यू रखे, मैं जरा मसरूफ हूँ। जज़ाकल्लाह जनाब। जी जी जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं तो इस गुफ्तगू के अंदर ज़्यादा हिस्सा नहीं लूँगा, और वजह उसकी ये है कि मेरा ये मौजू नहीं है, मेरा ये उन्वान नहीं है इन फ़िक़ही मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करना। मैं एक तकाबले दयानो मज़ाहब का तालिब इल्म हूँ, सिर्फ रद्द कादियानियत, रद्द इल्हादियत, ये वाले मैं काम करता हूँ। तो मुफ्ती साहब काबरीन का भी तो देखना है ना आप, बहुत मैंने सुना जी, था। मैं मुझे बात करने देंगे तो मैं फिर कुछ जी अर्ज कर रहा हूँ। कोई किसी की किसी पर कोई पाबंदी नहीं है।
मुझे कोई आमिर नज़ीर भाई या कोई और हम्यूनिटी कोई भी मुझे नहीं उकसा सकता कि भाई तुम इस पर करो बात, अपना मौकफ दो। क्यों दें भाई, हमारा मौजू ही नहीं है। अगली बात जो थोड़ी सी मैं करूंगा बीच में शामिल, अपने मजाज से बिल्कुल हट के, क्योंकि ये मेरा मजाज ही नहीं है। बात ये है कि आमिर नज़ीर भाई ने भी और आसकानी साहब ने बिल्कुल गलत की है। अगर की है, मुझे नहीं पता, मैंने ना ही तो गुफ्तगू सुनी है, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले शामिल हूँ भाई। आप ना ही तो आप आलम दीन है और ना ही आपका ये शोब है। जब ना ही आप आलम दीन है, ना ही आपका ये शोब है, तो फिर क्यों हुथलदी? वो कहते हैं ना, लिकुल्ली फन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो उस फन को बेहतर जानते हैं। भाई जब आपका शोबा ही नहीं, आपका उसके ऊपर दीनी मसाइल शरिया के ऊपर एक बड़े बड़े उलमा की गिरफ्त नहीं होती भाई। और ख़ास करके ये होता ये है कि हमारे दारुल इफ्ता के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं। वो एक मुफ्ती ही सारे ही फतवे दे, बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तो बै और शरा के मामलात के लिए अलग मुफ्ती बिठा दिया गया है, निकाह तलाक के मसाइल के लिए अलग मुफ्ती बिठा दिया गया है, नमाज रोज़ा के मसाइल बताने के लिए अलग मुफ्ती बिठा दिया गया है। तो बंदा वो काम करे ही नहीं, क्यों छेड़ा मसला ये? अच्छा मैं बताता हूँ इसका मैं आमिर भाई एक मिनट। तो पीर दीदार अली शाह साहब ने क्या मौकफ इख्तियार किया, वो उलमा जाने भाई, उलमा का काम है। रही बात ये है कि आमिर भाई ने एक बात की है कि ये मुख्तलफी मसला है। मुख्तलफी ये कहां से हो गया जी? है? मतलब ये कि एक काम करने वाले आटे में नमक के बराबर है, तो उसमें यह कहा जाएगा कि ये मुख्तलफी मसला है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे नबूवत के इजरा के एक थोड़े से लोग कायल हैं, तो हम ये कहें कि नहीं वो ना मुख्तलफी मसला है, इसको मुख्तलफी मसला कहते हैं। मुख्तलफी मसला कुछ और होता है। ये नहीं होता जो अल शाज कल मदूम होता है, जो शाज होता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती इल्मी दुनिया के अंदर, उसको मुख्तलफी नहीं कहते, मुख्तलफी और होता है। अगली बात, मैं सऊदीया के अंदर बल्कि दीगर अरब कंट्रीज के अंदर बड़ी दफा गया हूं, मैंने यकीन जाने आज तक नहीं किसी अरबी को या वहां के किसी वाबी को ऊंट का पेशाब पीते देखा, ना ही सुना। वो असल में अरबों के कोई कबीले हैं, गांव गोट हैं कोई, वो भी मतलब लाखों में से कोई चंद अफराद हैं जो ऊंट का पेशाब पीने के कायल हैं या वो पीते हैं, वो अपनी जहालत की बना पे। तो क्या उठा के वो पूरे उन सब को भाभी बना दिया जाए और इस सब भाभियों का एक फतवा बना दिया जाए? नहीं, ऐसा है ही नहीं। ये असल में पाको हिंद के वहाबिया अलग हैं, अरब के वहाबिया कुछ अलग हैं। अब वो ही बात है कि मैं इस पर ठीक ठाक गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। चले मुख्तसर करें, मैंने भी जाना। हाँ, तो यही है कि इसको वाइंड अप कर दिया जाए, हमारा नहीं है मौजू, इस पर नहीं। और फिक्री मामलात पे ना बोला करें, वो फिर दोनों तरफा जो है ना लोगों के दिल वगैरह दुखते हैं और अच्छा नहीं लगता। तो अगर कभी कहीं कोई गुफ्तगू चले तो उसको रोक दिया जाए, नहीं यार ये हमारा मौजू। मोहतरमा फिर आप रिक्वेस्ट कर सबर रख, ठंडा रहो। बात यह है मुफ्ती साहब, मैंने तो आज तक कभी दावा नहीं किया कि मैं आलम दीन हूँ, लेकिन पीर अस्कानी साहब आलम दीन है और आपने भी कोई कोर्स वगैरह किया होगा। लेकिन असल चीज़ जो है ना, इल्म बंदे की या गुफ्तगू से छलकता है या काम से छलकता है, ना कि दावे से छलकता है।
गुजारिश ये है कि कोई फ़िक़ही मामला हो या अकीदे का मसला हो, फ़ुरू हो या असल जो भी हो, उस पर कमेंट करना हर उस बंदे का हक है जिस बंदे को यकीन है और उसने उस पर कोई मुतालिया किया हुआ है और उस पर गिरफ्त है उसको। हज़ारों लोग ऐसे मैं आपको पेश कर सकता हूँ जिनके पास कोई आपकी तरह मदरसे की सनद नहीं थी। ये पिछली सदी के इमाम नासरुद्दीन अलबानी घड़ी साज थे, कौन सी डिग्री थी उनके पास? डॉक्टर इसरार के पास कौन से मदरसे की डिग्री है? करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स रहे हुए हैं। तो ये चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि यहाँ पर एक ग्रोह है गालीबाज का, और उन्होंने यहाँ पर बात को उछाला हुआ है कई रोज़ से। कि किसी बंदे ने मुझसे पूछा कि ये इस तरह की हदीस है कोई? हाँ, मैंने कहा हाँ हदीस है, हम तो इस बात के कायल हैं बिल्कुल, और जो जिस बात के हम कायल हैं उसको हम बयान करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्यों ना करेंगे। कोई बंदा पूछता है भी हदीस में इस तरह की बात आती है? हाँ बिल्कुल आती है, बिल्कुल हमारी नज़र में जायज़ है पीना, दवाई के तौर पर, ये नहीं मशरूब के तौर पर, या मेहमान आए तो उसको जग में डाल के देना है। दवाई के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता। हम इसको हराम नहीं समझते, नापाक नहीं समझते, निजस नहीं समझते। इसके ऊपर इख्तलाफ जो आप कह रहे हैं कि इख्तलाफ नहीं है, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ चंद लोग हैं बद्दू वो जो पीते हैं, इसका तो शाह साहब पता चलता है ना जब हम किताबें खोलें, फतावा जात खोलें, तो कितने लोग हैं जिन्होंने इसके हक में फतवे दिए हुए हैं, कितने लोगों ने इसके खिलाफ फतवे दिए हुए हैं। हमारे सामने अमर भाई मौजूद है। यार चुप कर, एक मिनट चुप कर जा मिनट। एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा अमल किया, उन लोगों को ये कहा, उस हदीस से इस्तिंबात किया है एक साइड के लोगों ने, दूसरी साइड के लोगों ने भी उसी से इस्तिंबात किया है। वो ये समझते हैं कि यह हराम है, ये निजस है, ये नबी पाक ने सिर्फ उनके लिए मखसूस था, ये किसी को और नहीं दिया जा सकता, वगैरह वगैरह। जिन्होंने इससे ये इस्तिंबात किया है कि ये हराम नहीं है, ये निजस नहीं है, और इससे जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने उनको एक दवाई के तौर पर एक तजवीज़ दी है, ऐसे कोई भी बंदा दे सकता है, हराम नहीं है, निजस नहीं है। उन्होंने भी इसी से इस्तिंबात किया है। इससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, इत्तफाक भी किया जा सकता है। इसका पता तो चलेगा जब आप गिनती करेंगे उलमा की तहरीरों की, कितने उलमा ने, कितने आइमा ने इस पर बात की है और इसको जायज़ करार दिया है। आप वो ले आएँ जिन्होंने इसको नाजायज़ और हराम करार दिया है। मैं आपको वो उलमा पेश कर सकता हूँ, वो आइमा पेश कर सकता हूँ जिन्होंने इसको जायज़ और हलाल करार दिया, हराम करार नहीं दिया। फिर इस पर फैसला कर लेते हैं कि ये मुख्तलिफ ही मसला है कि नहीं है। अमर भाई, कभी आपने दवाई के तौर पर इस्तेमाल इसको किया है या नहीं? मैंटी चुप करना ही या बाज नहीं हमना है यारो मैंटी तू तो चुप रहे यार। मुफ्ती साहब टाइम थोड़ा है, बस इतनी मैं गल की एक तुम बिठाते हो मैं यहाँ पर तो मोअज़्ज़िज़ीन है, तो अगले की बंदे इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, कुछ तरीकेकार है। हर बंदा तो हम चले जाते हैं, तुम बता दो हम चले जाते हैं। नहीं शाह साहब आप बात करें, मादरे मेरा आमिर नज़ीर भाई ਵੱਡੇ ਨੇ हैं ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं गलत तू गलत करना है ना, फिर ਅਸੀਂ तेरी विराट ते आना छड़ देंगे। मुफ्ती साहब शैतानी करनों नहीं मुड़दा, ਉਹਦੀ आदत है। नहीं आदत है ते लितरां जो गए, फिर लितर भी फिरांगे ना, ਅਸੀਂ अपनी ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। हद हो गई, ये बंदा बार बार ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, पे चुप करके गल सुनने वाला। जी आमिर भाई। मुफ्ती साहब मेरी बात खत्म होगी, बस 2 मिनट में, आप भी 2-3 मिनट में बात को क्लोज कर रहे हैं, खत्म कर। बस ये क्लोज क्या करना है, नहीं मौजू ये ना छेड़ा करें। मैं नहीं समझता। आधा मिनट मेरा रह गया, मनु याद आ गई गल मुफ्ती साहब। हुआ ये है कि ये जो गालीबाज ग्रोह है, अच्छा ये मुझे भी याद आ गई ना, मुझे भी याद आ गई। मुझे ये वो पता है, ये गालीबाज लोग, ये अब्यूजर हैं, बस वो उनको तो चाहिए, शरारती लोग हैं, उनको चाहिए कि बस ना कोई नक्स मिलने की देर है, बस चढ़ दौड़ो। भाई आसकानी साहब के साथ मेरे जाती तौर पे इख्तलाफ है, वो बड़ा अरसा पहले एक इख्तलाफ मेरा हुआ था, और वैसे मजमूई तौर पे कभी मैंने नहीं कोई सुनी। जब सुनते हैं हम तो हम रुकते नहीं है। मैं बेबाक आदमी हूँ, मैं मुंह के ऊपर ठक करके बात करता हूँ, चाहे कोई भी हो। वो नाराज होता है हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं ऐसा बेबाक आदमी हूँ, समझ आई कि नहीं। तो वो ऐसे ही वो आसकानी के पीछे पड़ गए हो यार। असल में वो ये करने वाले लोग वो ही हैं, चंद अब्यूजर लोग हैं। वो असल में मसल की इंतशार फैलाना चाह रहे हैं,
ये इस टो के अंदर वो रहती हैं कि क्योंकि ये बरेलवी, शिया, देवबंदी और भाभी एक जगह पर इकट्ठे होती हैं। अब ये देखें, बराड़ चलाने वाला शिया है, यहाँ पर नीचे देवबंदी भी बैठे हैं, मैं बरेलवी हूँ और ये भाभी हैं, चारों मुकातबे फिक्र एक बराड़ पे इकट्ठे बैठे हैं। तो अब ये करते ये हैं, इन लोगों का ये वतीरा है कि ये चाहते हैं कि ये आपस में किसी ना किसी तरीके से उलझे, वतीरा है कि ये चाहते हैं। तो ये सिर्फ इनका उलझाना मकसद है, और कोई मकसद ही नहीं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि ऊंट का पेशाब हलाल है कि राम है ना, उनका काम है शरारत, सिर्फ शरारत। जी मैंने बात कर ली है। मुफ्ती साहब मेरी नजर में पीर अस्कानी साहब ने, खत्म कर ले एक मिनट बस, पीर अस्कानी साहब ने वहां पर जाकर गलती की है, और वहां जो उलमा आए हुए थे इस मसले को डिफेंड करने के लिए इन अब्यूजर्स के पास, उन्होंने भी वहां आकर इस मसले को बार बार फितना कह कहकर उन्होंने भी ज्यादती किया। पीर अस्कानी साहब ने भी ज्यादती की है, उन्होंने भी ज्यादती की है, दोनों ने गलत किया है। हालांकि उनको इतना कहना चाहिए था, भाई हमारे और उनके दरमियान ये मसला जो है ना, ये इख्तलाफी है, वो इसको जायज़ समझते, हम नहीं जायज़ समझते, बस बात खत्म, इसको झगड़े को ख़त्म करो। इनको भी वहां जाके दलाइल लेके ये इधर उधर की गुनिया तो तालबीन की और ये दीदार अली शाह साहब के, कोई ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की। इख्तलाफ है, उनकी नज़र में ये जायज़ नहीं है, हमारी नज़र में जायज़ है, बस ख़त्म बात। दोनों ने गलती की है। तो लेकिन इन दोनों से गलती करवाने वाले कौन है? वो अब्यूजर्स, वो गालीबाज ग्रोह, जिनको और कुछ नहीं समझ आ रही। वो आप चाहते हैं कि हम, लेकिन हमारे भोले भाले उलमा, आपको पता ही है, भोले भाले उलमा चढ़ जाते हैं, उनको मिल जाते हैं, वो कहते हैं आज जी अच्छे दुकान खोलो। आज वो गालीबाज जो माँ बहन की गंदी गालियां देने वाला बंदा, आज वो अस्कानी साहब करके बात कर रहा था। क्यों? इसलिए कि वो चाहता था कि इसको मैं अच्छी तरह इसके ऊपर लकड़ियां रख के ईंधन तैयार करके इसको मैं भड़काऊं। इन लोगों को समझ नहीं आती, ये भोले भाले उलमा है ना, एक इधर से भोले भाले उलमा गए थे, एक उधर से 2-3 भोले भाले उलमा आए थे। जी सिया भाई कोई करनी बात, मुफ्ती साहब अगर आप नहीं करनी तो करने। अच्छा जी मैंने बस इतनी सी बात करनी है कि वो दोनों जिनकी आप बात कर रहे हैं, अस्कानी साहब ने उधर जाके गलत किया है और उस बंदे ने बहस करके गलत किया है, और आपने और मुफ्ती मुबशर शाह साहब ने, आप दोनों ने यहाँ बैठकर उन दोनों को डिस्कस करके गलत किया। माशाल्लाह सारे एक हो जाए। ओए रह जा तू, मैं ते आंधी जे तू हो जाए हूं ना है, मैं आंधी ये गल मैं खुद क्या वे कि गलत होया है। मैं कि मैं मेरा मौजू ही नहीं है, साडा मौजू ही नहीं है, सानू इन्हां मसाइल ते गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। और जेडी आखिरी गल थी ना, मैं क्या एक मिनट गल ते सुनो ना, गल ते सुनना, मैं आखिरी गल है कही सी, मैं ए क्या कि मैं थोड़ी जी विच गल करां, और जेडी थोड़ी जी सी वो तू सुन लईए है, और तेरे ढाई चढ़ गई। ਆਹੋ तो चलो ठीक है ना, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ मैं ਪਏ रोकिया ही है, अल्लाह दी कसम रोकिया मैं यार, काम मेरा मौजू ही नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब अच्छा रोकिया सी बस वे थोड़ा जिवें हिस्सा पाया ਸੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੌਰ मुफ्ती साहब ने यही गल कही है कि फिकी मसाइल ने इन्हां नूं छेड़न दी जरूरत नहीं थी, लेकिन शायद मुफ्ती साहब को ना पता होगा कि अच्छा बात ये है कि भाई उर्दू में ही बात कर लेते हैं, ये फिकी मसाइल में कौन नहीं जानता भाई इख्तलाफ है। ये यार ये तो तुम्हें ये हदीसे अर्नईन के ऊपर, उरैना वाली हदीस के ऊपर इख्तलाफ है, बड़ी मामलात है, बड़े मामलात के अंदर है, किस किस को लोगे। तो ये है कि ये फिकी मामलात को इस डिबेट और इस तकाबुल अदयान से अलग ही रखें, तो ना डिस्कस किया करें। मैं कहता हूं, और ये आस्कानी साहब को थोड़ा सा मैं अर्ज करूंगा कि आप भोले बादशाह है, आपको नहीं पता दुनिया ये कितनी सख्त है, तो आप नहीं जानते इन लोगों से जो ऐसा शरारत करने के लिए आए, तो कॉलर के काल से ही पता चल जाता है। जरूरी नहीं होता हर सवाल का जवाब देना ही देना है, हम क्यों दे भाई, हम इतने वेले बैठे हैं कि हम तेरे ਕਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ पूरी फिल्म ने बड़ी बड़ी फिल्म ने मैंने पता है, लेकिन वो गालियां दे रहे हैं, तो वो तो कई रोज से दे रहे हैं, देने दे उनको गालियां, ना जाएं आप वहां। बहरहाल बात ये है, ये ना मशहूरी से बात करने दे। आखिरी बात ये है, नहीं फिर इसका नहीं खत्म करना, बात खत्म करने 10 वो बात करनी नहीं है, वो बात करनी नहीं, बात कुछ और है। अच्छा मुझे 1 मिनट आखिरी बात कर लेना। गुजारिश ये है कि जो जिस पर मैं अमल करता हूँ ना, अगर कोई बंदा मुझसे कल पूछता है भाई नमाज रफ़ा दैन से पढ़नी चाहिए, मैं कहूँगा हाँ भाई मेरी नज़र में तो रफ़ा दैन से पढ़नी चाहिए।
मैंने तो रफ़ाइदैन की हदीसें देखी हैं। मुफ्ती साहब को वो बंदा जाके पूछता है बगैर रफ़ाइदैन के पढ़नी चाहिए, मुफ्ती साहब तो यही बयान करेंगे कि रफ़ाइदैन से नहीं पढ़नी चाहिए, बगैर रफ़ाइदैन के पढ़नी चाहिए। आपसे पूछता हूँ ऊंची आमीन कहनी चाहिए, आप कहेंगे नहीं, मैं कहूँगा हाँ। असल चीज़ ये है कि ये जो अब्यूज़र्स हैं इनके पास जाके बैठ के डेरा लगा के इस पर बहस नहीं करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। मसला ये है आमिर भाई, आप शिया हो जाए सारे ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं आमिर भाई, इसमें मसला ये है एक कि अब आप कहेंगे कि रफ़ाई दैन करके नमाज पढ़े, मुफ्ती साहब के पास जाएंगे वो कहेंगे नहीं रफ़ाई दैन के बगैर नमाज पढ़े। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि रफ़ाई दैन करके जो पढ़ता है वो फितना करता है, या कोई ये कहे कि रफ़ाई दैन जो नहीं करके करता वो फितना करता है, यार अबू बकर इसको फिर क्या ना करना? मौजू अलग हो जाना है, फिर अब छोड़े यार, कर दे, मेहरबानी करे। ਮੌਲੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਚੱਸ ਆਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਤਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਤਨਾ, ਤੇ ਤੀਆ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਤਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਤਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਫਿਤਨਾ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੀ। मसला है कि ये आसकानी साहब ये मसले अक्सर फिक्की मसले छेड़ती हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ना छेड़ा करें, वो फिर देखे मामलात होती हैं। आप हमारे साथ सूखते बैठते हैं तो वो फिर खत्म नबूवत के महाज के ऊपर ना फिर बड़ा एक अजीब मोती साहब उनको हदीस का मैं शर्त लगाता हूँ, उनको हदीस का नंबर तक याद नहीं, गालीबाज टोले को ऊपर से बड़ी अहम गल सी है, रह गई सी मेंटी दी, बड़ी अहम गल। उनको हदीस सुनाई तो काम हो आना शुरू, ना इस तरह की चीजें सुनाया करें। अच्छा मुबशर साहब मेरी बात सुन ले आप। बात यह है कि मैं कभी भी इख्तलाफी बात करता ही नहीं। नहीं तौबा करो, तौबा, अल्लाह माफ करे, सवाल ही नहीं पैदा होंदा। अगर कोई आके टाइम थोड़ा यार गल करन दियो भाई, गल करन, गल ए तरीका नहीं है, अच्छी बात जी। कभी भी मैं नहीं करता। हाँ जब कोई आता है और वो शुरू कर देता है मैं जवाब जरूर देता हूँ, ये बात है मुझ में। जिस तरह आपने कहा ना बेदड़ल कह दे, मैं भी किसी के सामने सही बात जो मुझे सही लग रही है, जिसपे मैं कायल हूँ, मैं सीधा वो कर देता हूँ किसी के सामने। असल बात क्या है मुफ्ती साहब, असल बात ना इन हदीस का मसला था, ना कोई और मसला था। मसला सिर्फ इतना था, आमिर साहब को वो लोग काफिर कह रहे थे कि तुम ये कहो कि आमिर साहब ने जो ये कहा है कि जो ऊंट का पेशाब है या हमारे जो चौपाए हैं, ये जो चौपाए हैं हमारे बाकुल लहम, इनका पेशाब जो है निजस नहीं है, ताहिर है। तो क्या ये बात जो कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर रहे हैं, क्या ये कुफ्र नहीं कर रहे हैं? क्या ये कुफ्र नहीं है? फिर मैंने उनको समझाया नहीं, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि माकुल लहम जो हमारे चौपाए हैं इनका बोलो बराज नापाक और नजस नहीं है। बार बार आमिर नज़ीर के ऑडियो पे लेकर के पूछ रहे हैं, मैं बार बार यही जवाब दे रहा हूँ। इतने में एक मुफ्ती साहबा का हमारी मुफ्ती से बात कीजिए, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। फिर वो मुफ्ती साहब ने इस बात को छेड़ा और ये बात की कि तुम लोग जो है बड़ा शौक है तुम लोगों को पेशाब पीने का। अब देखिए यहाँ से बात नहीं हुई, मैं बताता हूँ आपको और साथ में स्कानी साहब एक मिनट है, मैं मुझे बात मुकम्मल करने दें भाई। आप अपने बारी पे बोले जितना बोलना है, मेरी बात तो मुकम्मल होने दें यार। इतना टाइम ही नहीं है अमरवान साहब जी जी, इतना टाइम ही नहीं है। नहीं टाइम तो बड़ा जी। वेखो जी हुण तुसीं पहले गल सुनाई है, फिर शाह साहब ने भी गल सुनाई, मैं भी अपनी गल सुनाई, हुण आसकानी साहब भी सुना रहे ने, ते अमर दियो फिर टाइम। उत्तों यूसुफी अबू बकर थल्ले और भी एक भाई बैठे, उन्होंने दियो टाइम 5-5 मिनट सारे लैन भाई। अच्छा मुफ्ती साहब आपने बात सुनना है या नहीं? ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? अरे भाई मेरे मैं पहले भी मना किया से ड्रामेबाजी ना कर रहे थे। अच्छा मुफ्ती साहब आप सुन रहे हैं? बड़ा सुकून बंदे गल पे कर पे तू चलो गालीबाज ले आके गाल कटा रही है। एक मिनट और दे दो प्लीज। यार गल है वे कि आमिर भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। आमिर भाई 15 मिनटा तो मैं बैठा, 15 मिनटा तो कही जाते बस खत्म आखिरी गल है, बस खत्म आखिरी। किन्नियां आखिरी गल्लां रहिंदियां ने, किन्नी की देर करनी है जे गल्लां? बस करो बस करो।
ओके ਤੁਹਾਡੀ टाइम ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਟ ਜਾਓ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਵਾਂ ਗੇਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ अच्छा हुन नहीं गल नहीं भाई कुछ ना नहीं, कहना, बिल्कुल मैंने जो ठीक मर्जी है, कहते रहना, बिल्कुल मैंने गुस्सा ठीक है, आगे नहीं ऐसी- साडा मौजू ही नहीं है भाई ना भाई आखिरी साडा बात। मौजू है ही नहीं आखिरी बिल्कुल गल नहीं करके साडा तो मौजू चलिए नहीं। कार ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸੁਣ ਲੈ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ सैयद मुबशर की ना वो शाह साहब ने दूसरे शाह साहब ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ गाड़ी बाज नहीं है शाह साहब जेडे अगे आए सन की ना है होना ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ जफरुल्लाह शाह साहब ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ नहीं नहीं ID जफरुल्लाह शाह साहब नहीं। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਦੋ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟੀ ਤੂੰ ਯੂਸਫੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਲੋ शाह साहब मैं यहाँ सरदारियों को मैं सुनना बड़ा अच्छा थोड़ा मशवरा है अपना इन्हों का ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾ ਦਾ ਨੌਕਰਾਂ ਕਰਮਾੜਿਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨੌਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ हाँ कोई भी फिकी गुफ्तगू कोई फिकी मौजू भी बहस मुबासा ਬਈ ਫਿੱਕੀ ਮੌਜੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾ ਦਿਲ ਦੁਖਣਗੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵਧਣਗੇ ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਮੌਜੂਆਤ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਕਰੋ मैं वो इस करन लगे हैं मुफ्ती साहब कि हुण इस गुफ्तगू ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ मैं कह रहा अगर ये मौजू नहीं होंगे तो 134 बंदे की आएंगे ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸਰ ਰੌਲਾ ਹੈ ਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂਟੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਛੇੜ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮਨੋ ਹਦੀਸ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਮਨ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਡੁੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਦੀ ਕਸਮ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮੌਜੂਦਾਤ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂਟੀ ਨੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਤੇ ਅਮਰ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਲੱਗੋ ਭਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਪੜਨਾ ਗੱਲ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਮੈਂਟੀ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਇਸ ਦਿਨ ਸੁਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਟਰ ਆਇਆ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ आ गई मुफ्ती साहब बरल चलो नहीं वाटर साहब से मैंने एक सवाल किया था तो ये उस टाइम तो ये कह रहे थे मैं अगले दिन जवाब दूंगा तो ना ही अगला दिन आया तो ना ही वाटर साहब आए हैं हाँ जी सलाम अलैकुम सर जनाब अच्छा सर एक चीज़ पहले बात करने से ना मैं एक बात बता दूं आमिर भाई को आमिर भाई आपकी दवाइयों के मुतालिक डिस्कशन चल रही थी क्योंकि मेरा तो पेशा है ये तो आई एम ए साइंटिस्ट तो मैं पाकिस्तान में भी बहुत दवाइयाँ बनाता रहा हूँ तो आपको ज़रा सा बता दूं साइंटिस्ट मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ही सन ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ मिर्जा साहब भी साइंसदान सन होते आप मेरे से पहले बात कर देते तो मैं आपको थोड़ा सा आसान रास्ता बता देता कोई झगड़े में पड़ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और सर वो तो एक बात हो गई ना तो ये तो मेरे प्रोफेशन की बात है तो अगर आप कभी भी दवाइयों के मुतालिक कोई मशवरा लेना हो या उनके बनाने के या उसके कोई आपको हलाल हराम का इशू आ रहा हो तो हम पाकिस्तान से ना यूएई में भी कतर में भी और सऊदीया में भी दवाइयाँ भेजते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिन पर फतवा लागू होता है तो उसके लिए हमारी हुकूमत ने और उनकी हुकूमतों ने बाकायदा अंडर फतवा जो है ना रूल्स और लॉज पास किए हुए हैं तो मुफ्ती साहब की सवाल किया अच्छा ये वाटर साहब बात किया है साइंस से बात चली है और मिर्जा साहब की साइंस और
साइंटिस्ट से बात चली है, तो ये मिर्जा साहब ने रूहानी खजान जिल्द 23 सफ़ा 171 के ऊपर गिलहरी को जिंदा करने का एक तरीका बताया है कि एक ये भी देखा गया है कि जब एक गिलहरी को पत्थर या सोटे से मारा जाए और वो बज़ाहिर बिल्कुल मर जाए, मगर अभी ताज़ा हो, तो अगर इसके सर को गोबर में दबाया जाए तो चंद मिनट में वो जिंदा होकर भाग जाती है। तो ये इस किस्म के साइंसदान हैं आप भी, जैसे मिर्जा साहब साइंसदान थे। ये जरा बताइएगा ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी दवाई इजाद हुई है जनाब? पता क्या है, खेल तमाशे का मेरे पास वक्त नहीं था, तो मैं ना असल में आप लोगों की हेल्प करने के लिए आया था, तो अब आमिर साहब ने मना कर दिया हुआ है, तो बस नहीं, ठीक उन्होंने है। तरीका बताया शहद, सुहागा और घी को उबाल के उसके अंदर गिलहरी को डालना। अरे यार मुफ्ती साहब, ये फिर नहीं, ये साइंस दवाई वैसे इजाद की है साइंसदान साहब ने। मैं तो वो बात कर रहा था कि नहीं, आप कह रहे मैं साइंटिस्ट हूँ, आप बताएं, आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये कोई साइंस है, ये क्या कोई ये लॉजिक है, क्या इसमें कोई है, ये बताएं जरा। हाँ, नहीं मौलवी साहब, मैं तो बिल्कुल सीरियस, और अगर साइंटिफिक पहलू से आप बात करेंगे तो आपके सवालों का जवाब दूंगा। गिलहरी को अगर सोटे से मारा जाए, उसको गोबर में डुबाया जाए, क्या वो साइंस क्या कहती है, वो जिंदा हो जाएगी? जी मैं बिल्कुल इस पर कोई कमेंट भी नहीं करूंगा, और नहीं, कोई जवाब कमेंट क्यों नहीं करेंगे? आपके मैं मिर्जा तो साहब की बात बिल्कुल है। ये वाली बात आमिर साहब को बताने आया था कि जैसे शराब भी हराम है, लेकिन दवाइयों के लिए इसकी मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस मुख्तलिफ वो तो मुल्कों चलो ने ठीक है, इसका भी तो बताइए ना कि आपके मिर्जा साहब ने ये बात लिखी है, आप कहते हैं मैं साइंसदान हूँ। अगर यकीन जाने वो जो पाकिस्तान का साइंसदान था गद्दार अब्दुल साम, वो अगर मेरे सामने होता ना, तो उससे भी मैंने ये सवाल करना था कि यार तू तो साइंसदान है, लेकिन तेरा नबी ये कहता है पे जैली नबी, तू इसके बारे में क्या कहता है? तो अभी आप भी साइंसदान हैं, तो चलो आपसे वो सवाल कर लेता हूँ। मुफ्ती साहब, वो जिस सवाल का जवाब डॉक्टर सलाम भी नहीं दे सकते, मैं तो उनके कदमों की खाक के बराबर हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी ना दे पाऊंगा, तो मेरे से तो माजरत। गुलहरी को मार के, अच्छा चले, आपके मसीह साहब नहीं, कोई मौलवी गुलहरी को मार के और गोबर के अंदर डुबाए, तो क्या वो जिंदा होगी कि नहीं? सर मैं आपको ये वाली बात बताऊं कि मैं तो बड़ी सीरियस बात करने के लिए आया था, अब आपको नहीं चाहिए तो खेल तमाशों में तो मैं एक गुलहरी, अच्छा चलो गुलहरी को छोड़ें, मुर्गी जैसी साडे घर मुर्गियां रखियां ने, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਬਰ 'ਚ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ है? सर साइंस पता है क्या कहती है कि तजर्बा करके देखें, अगर तो जिंदा हो गई तो आप हमें भी बताएं। अच्छा, मिर्जा साहब ने तजर्बा कीता सी? पता नहीं सर, मेरा तो इसे फिर वो बगैर तजर्बे तो लेते रहे। नहीं तो गिलहरी पकड़न का तरीका नहीं मिर्जा साहब ने दस्या, पकड़नी के चले सर, आप ऐसा है कि आप खेले तमाशे करें, तो अगर कोई आमिर साहब, अगर कोई आपको दवाइयों के बारे में कोई इंटरनेशनल कोई दवाई की गल हो रही है, शहद सुहागा और घी, हाँ जी हाँ जी, दवाई का की करना जे? सर इस दवाई का ना आप ही तजर्बा भी करें और फिर हमें भी बताएं। नहीं कादियानी तुसी उसी ते नहीं ना है। अच्छा सर, बात ये है कि आप तजर्बा करें तो हमें बताएं। हाँ, कोई सीरियस कोई इशू होएगा ना तो मुझसे जरूर पूछ लिया करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा चले, ज्यादा दूर क्या जाना है, आजकल ना बुखार वगैरह के मसाइल छिड़े हुए हैं, तो वो मुर्गी ज़िबा करके सर पे बांधना बुखार की हालत में, उसका ही थोड़ा सा नुस्खा बताएं। पैनाडोल तू तो साडी जान छड़ाओ यार। अच्छा चल यार, मिर्जा साहब ने गिलहरी पकड़न का नहीं तरीका दस्या, ये विच बड़ा मसला वा, किंज बंदा तजर्बा करना हो तो किंज पकड़े गिलहरी? कादियानी आया एक और सैठी नाम दा कादियानी, सर कुंडे नाल फड़ लो, सर कुंडे नाल गिलहरी फड़ी जांदी है, साइडां ते ला के ना इंज करके सट कुंडे ते विच गिलहरी आएगी ते उतों इंज जाके छड़पी मार के फड़ लो। नहीं ते ओदे नाल मर नहीं जांदी गिलहरी, नहीं ते मरेगी ते जिंदा भी ते बाद च कर लेनी जे ना, गोबर च नप दे। अच्छा सर, कंडे से गिलहरी मारनी है फिर उसको जिंदा करना, ठीक है। कौन आए ने जी? सेठी साहब की ना है? हाँ जी शाह जी, की हाल जे? शुक्र है अल्लाह दा। और सुनाओ, सब ठीक है? शुक्र है अल्लाह दा।
ਆ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛੇੜੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਉਹੀ ਖਟਾਈ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ आंधे ने पे दूध बासी दूध को ऐसे हाथ में रखो और मलना है और उसको गौर से देखना है। तो जब गौर से देखोगे तो तुम्हारे हाथ के ऊपर कीड़े पैदा हो जाएंगे। रूहानी खज़ैन जिल्द 23 सफ़ा 125। हूँ दसो हूँ केड़ी साइंस नूं मल्लीए ते किनू ना मनीए? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਕੱਢੋ ਜਨਾਬ। ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਸ ਚ ਵਹਾਬੀ ਸ਼ੀਆ ਸੁन्नी ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਹਾਬੀ ਸੁन्नी ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਖੇਡਨੇ ਆ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੌਲਵੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਰੋ ਛੱਡੋ, ਸੈਯਦ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਊਂਠ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੋਜੋ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਓ। ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਲਮਾਏ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮਦਰਸੇ ਚਲਾਣਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਦੌੜਨ ਦਾ ਯਾਰ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰੀ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। शर्म ना डूब के मर जाओ, इस गल के मर जाओ। मुसलमान बन जाओ। नसारा में अनूद ये वो मुसलमान देख कर ਹਜ਼ਾਰ ਹਾ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾ ਕੀੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਯਾਰ? ਹਾਏ 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 ਇਹ ਬਾਤ ਸਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਊਂਠ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦੌੜ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਓਏ ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਧਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੁੰਮੀ ਸੇ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे जिंदा आसमान ते उठाए जान ते जेड़ा इख्तलाफ करदा जे ओ चुम्मियां दे नाल बंदियां नूं जिंदा कर रहे मुर्दियां नूं। ओए 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 सीरतुल महदी है सफा 811 है। बादशाह ने सुनकर कहा अच्छा इसकी आजमाइश कर लो। मसले का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। को कहा कि उस मुर्दे को बोसा दो। उसके बोसा देने की देर थी कि वो शख्स उठ बैठा। चलो जी मुर्दा आबे हयात ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਸਾ ਹਯਾਤ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਸਾ ਹਯਾਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੇਖੀਏ। ਮੋਸਾ ਹਯਾਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਮੀ ਦਲਾਇਲ ਚ 0/0 ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ 0/0। ਕਿਹੜੇ ਇਲਮੀ ਦਲਾਇਲ ਹੈ? ਪੱਟੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਆਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ अब रेलवी मदरसे वाले रेलवी आका दा गुलाम तू पट्टी टुटी गई, दोस्त रे इधर की शीशी, पेट फट गया, मुंह काले। ए दलाल ने मंगना शुरू कर दे। ओए डूब के मर जाओ। ए दलाल ने नहीं ए मिर्जा साहब ने क्या उन्होंने कहा? मिर्जा साहब उधर मेरे हाल में आओ। मिर्जा साहब वालो जिन्ने क्या पेट फट गया, इल्हाम होया मेरे ते। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਲਾਇਲ। ਮਸਲੋਂ ਕੋ ਛੋੜ ਦੋ। ਇਹਨੇ ਦਲਾਇਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਚੀਖੇ ਮਾਰਤਾ, ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਔਲਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਹਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਔਲਾ। ਗਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੋ ਤੋ ਨਸਾਰਾ। ਓਏ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਲਾਮ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਔਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। मदरसा मिर्जा गुलाम कादे नहीं तो वड्डा मंगता केड़ा सी जेड़ा कहंदा सी ओ कंजरी दी जेड़ी हराम दी कमाई है ना ज़नाकारी दी, ओ कंजरी दा भरा आया सी ओने सीरतुल महदी खोलो जरा मैं तैनूं दसना। मैं तैनूं मंगता दसदा जेड़ा कंजरियां दी ज़नाकारी दी कमाईयां खांदा सी। मैं दसदा तैनूं, टेंशन नहीं लेनी। मिर्जे कादनी को कंजरी दा भरा आया सी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਵਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜੋ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਮਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਦ ਬਣ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਅਕੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਹੁਣ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਾਟਨ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ
ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਜਾ ਘਰ ਚਲਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜੇ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਰਜ਼ਈਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਕਾ ਚੰਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਟ ਅਪ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜੇ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਬੀਆ ਦੱਸ ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰੀਏ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਵਿਖਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋ ਕਾਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਮਾਈ ਆਹੋ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੰਚਨੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਵਾ ਅਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹਰਾਮ ਖਾਨ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੰਬਰ 272 ਖਬੀਸ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ 272 ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਲੇ 272 ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਲਓ ਜ਼ਿਆਰਤੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਨਟ ਇਹ ਤਲੇ ਖਬੀਸ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਡਿਕੋਡਰ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਕੀਤਾ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਕਫਨ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਨਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਫਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਫਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਐ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਰਸੇ ਚਲਾ ਲੈਣ ਫਲਾਨ ਚਲਾ ਲੈਣ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਬਗੈਰ ਤੋਂ मुफ्ती मुबशर साहब अंजिया साहब वो तो मिर्जा जी तो सीरत अल मेहदी ने नहीं लिखी ना तो मिर्जाई तो सीरत अल मेहदी को नहीं मानते ना जी ये तो मिर्जा जी ने नहीं लिखी ना ठीक है जी मिर्जा जी ने अगर नहीं लिखी तो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ मिर्जा जी ने अपनी किताब ਦੇ ਵਿੱਚ खुद लिखा होया वा यूरोप बेटा लिख रहा है उसका 1 मिनट यार उसका बेटा लिख रहा है ना उसकी सीरत और किरदार भाई वो यकीनी सी बात है सीरत और किरदार किसी का कोई और ही लिखता है अपनी सीरत और किरदार को कभी सुना है कि अपनी सीरत और किरदार के ऊपर बंदे ने खुद ही कोई किताब लिखी हो मिर्जा जी ने तो नहीं लिखी ना जी वो उसका घर का फर्द है उसका बेटा है वो लिख रहा है ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਲਾਂਤੀਓ मिर्जा साहब भी पट्टी ते पेचस खा देसन कौन ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੇ ਲਾਂਤੀਓ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲਾਂਤੀਓ ਉਹ ਦਿਓਬੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ਼ਰ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਮੋਚੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਚੀ ਤੇ ਚੂੜਾ ਝਮਾਟ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਰਹੀ ਚੂੜਾ ਝਮਾਟ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁੰਡ ਤੇ ਲੱਤਰ ਸੱਟੇ ਸਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ ਲਿੱਤਰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਣ ਕੀ ਲੰਮੇ ਲਾਂਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਆਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਲੀਫੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਂਤੀਓ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਾਓ ਜੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮੁਤਰਵਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਓ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਟੰਗੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਮਰਜ਼ਈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਛੁੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਤਰਵਾਣਾ ਰੇਲ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਚੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖੋ ਫਿਰ। हाँ, डॉक्टर डू साहब आए हैं जी। हाँ जी, एहसन साहब भी आए हैं जी जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, जा भाई क्या डॉक्टर डू साहब नु जिया भाई, डॉक्टर डू साहब नु मुफ्ती साहब पुछो जरा ओ कीड़ियां वाला हवाला उन्हें पुछो मिर्जा साहब जी ने जी की पूछो की लिखा है दसो। ए ना गल चल रही सी कि हजरत मिर्जा मसीह साहब जेड़े ने वो फरमांदे ने कि जनाब ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸੋਟੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਗੋਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਜ ਤੋਜੋ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾरों कीड़े तुम्हारे हाथ पर पैदा हो जाएंगे। ठीक है। फिर एक हवाला ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੁਖਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਗਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨੋ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ तो ਉਹ ਨਾ ਬੰਨੋ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸਨ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਨ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਐਵੇਂ ਚਵਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੋਤਬਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚਵਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਵਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਂ ਪਏ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੱਡੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੱਡੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਵੀ ਕਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਜੇ ਕਿ ਅੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਾਖ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮਕਦ ਅੱਡੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਕਰਸ਼ੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ, ਇਹ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਲਾਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ, ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ। ਵਾਹ, ਵੈਸੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਸ਼ੋਲੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਜਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜਾਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਐਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ? ਫਰਾਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਕਾ ਫਰਾਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਚੁਰਾਇਆ ਨੇ ਜੀ। ਪੱਕਾ ਫਰਾਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਪੱਕਾ ਫਰਾਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ, ਪੱਕਾ ਫਰਾਡੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਡੂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੋਂ ਬਸ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਭਜਾਤਾ ਜੇ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਹੈ ਜੀ।
अच्छा जी, ਇਹ ਕਰਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, रूहानी खजाइन जिल्द 2 सफ़ा 99, जिल्द 2 सफ़ा 99 ਅੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ, ਤੇ ਗਲੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਛੋਟੇ, ਔਰ जिल्द 3 सफ़ा 171, जिल्द 3 सफ़ा 171, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੜਿਆ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ जिल्द 3 सफ़ा 125, ठीक है। ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੋਮ ਸਫਾ 27। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਆਹੋ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਪਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖ ਕੇ। हाँ तो देखो मैं ये पूछना चाहना, ये कहते ने कि जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी हमारा ज़िबिया खाया, ते नमाज ते मिर्जा ते किसी होर तो ना पढ़दा सी, मूंह च पान रख के ते फारसी ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪੂਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਪਿਚਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਚਕਾਰੀ ਰੋਕੀ ਉਹ। ਅਨੀ ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੂਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ। पता कराओ वही तो नहीं है पीछे। अच्छा ਹਾਂਜੀ मैं पहले भी रुक के ना सुनी है। नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਭ, वही साजिश ਇਹ ਜ਼ਬੀਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਲਦਾ। ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਸਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁਕੜੀ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਕੜੀ, ਚੂਚਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਲਈ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ नहीं यार, कुकड़ी तो पहले गल याद आ गई है। मिर्जा साहब ने मुर्गा ज़िबा करके बुखार दी हालत च बन्नन दा तरीका ते दस्सिया, लेकिन पेशाब एक दूसरे दा पी लिया जे, लेकिन यार रहील साहब ओ खंभ लाने ने कि नहीं, जरा थोड़ा जा मुश्किल हल करिया जे। ओ खंभ लाने ने कि खंभा समेत ही बंदे ने ने कहा सी लांती अहमदिया नु तुसी का नहीं पर कहोगे ਉਹ ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਆਹਮਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭਾ ਸਮੇਤ ਹੀ ਬੰਨਣਾ ਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਲਾ ਮੇਰੇ ਘੰਟਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਰਗਾ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਖੰਭਾ ਸਮੇਤ ਹੀ ਬੰਨੇ ਕਿ ਉਂਝ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਜੇ ਲਾਨਤ ਮੂਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਮੂਤਰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਟ ਮੂਤਰ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੂਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਓ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਮਰ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮੁਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। अच्छा मुफ्ती साहब एक ना सवाल है, बड़ा सीरियस सवाल है। अच्छा अगर कोई बंदा पेशाब जड़ा वे किसी मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह ही पा के ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਟੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਕਤ ਇਹਦੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਖੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੰਗੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ। नहीं मतलब यकीन करो, मैं अल फजल अखबार जो पढ़दा हवाला मैनू बड़ी हैरत हुई। मैं भी पढ़िया वे, मैं भी पढ़िया है, मैनू पता चल गया जिधर तुहाडा इशारा है। ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਵੇ ਖੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ ਨਵਾ ਸਕਣੇ ਨੰਗੀਆਂ, ਤੇ ਭਲਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂਤਰ। ਉਹ ਨਾ ਖੁਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੂ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ 100 ਦਫਾ ਮੂਤਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। मतलब मुफ्ती साहब एज ए इंसानियत मैं सिर्फ यही सोचा कि चलो कमरे कर लिया, गुसलखाने कर लिया, मंजी थले कर लिया, ये गल ठीक है, लेकिन खिड़की दे विचों बाहर सटना ये एक इंतहाई मायूब गल है। ਇਹ ਗੋਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮਧਾਣੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। हेलो जी, सुनो जी, साइंसदान साहब जी की बात सुने जी। चूहा मिट्टी खुशक से पैदा हुआ, जिसका आधा धड़ तो मिट्टी थी और आधा चूहा बन गया। हेलो
ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੈਂਸ, ਪਤਾ नहीं कितने लभदे रहंदे हो सैंस। खुश्क मिट्टी सी पई जी, उसके अंदर से एक चूहा पैदा हुआ है, निकला है, जिसका आधा धड़ मिट्टी का था, आधा चूहा है। कदी सुनिया है वो कदी किसी ने सुनिया है? ਇਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚੂਹਾ। ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚੂਹਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚੂਹਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਕਾਫਰ ਤੇ ਦਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਬੀਆ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕੌਣ? ਕਾਦੀਆਨੀ? ਮਿਰਜ਼ਾਈ। ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬੀਹਾ ਖਾਨ ਨਾ ਖਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਗਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ ਨਾ। याद भाई एक मिनट हमारी गाल सुनो, देखें ज़िया भाई बात को समझें, वो हमें काफिर समझते, हम तो मुसलमान है ना, लेकिन वो तो हमें उनका मसीह खसीह मऊद क्या कहता है कि जिसको मेरी दावत पहुंची उसने मुझे नहीं माना, वो पक्का काफिर और दारा इस्लाम से खारिज है। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬੀਆ ਵੀ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, रसूल पाक ने फरमाया जिसने हमारी तरह किबला हो के नमाज पढ़ी। भाई जिस कौम दा अकीदा ए होवे माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूअर दी चर्बी वाला पनीर खांदे सन, ते ओदा अकीदा मुसलमानां दे ज़बीहा दे बारे की होएगा? लेकिन फिर हदीस दा हवाला दे के अपने आप नूं मुसलमान साबित करदे ने ना। नहीं उन्हां दे नहीं, सब कुछ हर गंदी तो गंदी चीज खा सकते ने कादियानी। इस गल दी नासर ने तायद की है कि तुसी बिल्ली भी खा सकते हो, कुत्ता भी खा सकते हो, जेड़ा तुहाडा दिल करे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਤ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਲਾ ਲੇ। ਇਹ ਨਾਸਰ ਉਦੋਂ ਐਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ। ਹਾਂ ਐਮਾ ਕਹਿ ਗਈ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਹੈ, अच्छा यार उर्दू में बात करें, मिर्जा कादियानी जब मरता है तो लाहौर उसको लाहौर से कादियान लेके जा रहे हैं, बर्फ के वो ब्लॉक रखे हुए साइड पे, पानी उधर से निकल रहा है। मिर्जा कादियानी को टट्टी मूत्र करते हुए वबाई हैजे का शिकार होके मौत आई है। यकीनी सी बात है उसके कपड़ों पर और जिस्म पर वो चीजें लगी होंगी, वो ही पानी उसकी मैयत को लग रहा है और नीचे चारपाई के ऐसे नीचे आ रहा है, और एक कादियानी चुल्लू भर के वो पी रहा है। तो पता क्या चला कि इन लोगों के नजदीक टट्टी मूत्र भी खाना पीना जायज है, ये सब कुछ हलाल है इनके नजदीक। हाँ जी जी करें बात। परेशान हो गए ना सारे मुफ्ती साहब सुन के। ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣੇ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਕਨ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। अच्छा यार ये आईडी आई है मलकुल मौत, ये कौन है भाई मेरे? आप ये तो निडो भाई है, आपसे कब का बात कर रहा है, वो ऊपर आई है शाहिल के क्या नाम है पूरा नहीं याद है। निडो भाई नहीं, ये ऐसे नाम नहीं रखते। देखिए मलकुल मौत एक फरिश्ते का नाम है जो कि जान निकालता है, तो गलत बात है। नहीं जो नाम है ना यार, जो हमारे नाम है हम वो ही रखेंगे। नहीं ये मैंने कादियानियों के लिए बनाई थी, लेकिन चले मैं वो तो चलो ठीक है ना, लेकिन नवीद देखे प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम, वो ही ठीक है। शूटर ये वो नहीं यार, जो हमारे नाम है हम वो ही हैं। जब आप अपनी शक्ल दिखाते हैं तो ठीक है, अपना नाम भी, हमें कोई प्राइवेसी की कोई जरूरत ही नहीं। हम जो हैं भाई सारी दुनिया के सामने, जिसने हमें कबूल करना है हमारे इसी तरीके से कबूल करे, जिसने नहीं करना ना करे, कोई मसला नहीं। ठीक होगा मुफ्ती साहब, मैं आज अभी करता हूँ। मैं बिल्कुल, इतने प्यारे हैं आप, इतने प्यारे हैं तो प्यारे प्यारे काम करने हैं ना हमने।
ठीक है, मैं अभी करके आता हूँ फौरन। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अच्छा साहिबान, आप हजरात बैठे हैं तो मुझे इजाजत चाहिए। ये ऊपर एक आईडी है मुफ्ती साहब, ये शाहिल अहमद के पता नहीं कौन है। आप शाही जी, शाही साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि जो मुझे फील हुआ है ना कि जो भी इंसान बोलता है ना कि कंट्रोल में किसी को गाली ना कि किसी को, कि हाँ इंसान है सभी, कि हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, कि इंसान की इज्जत करते हैं जो मर्जी मजहब हो। कोई इंसान तो है ना, ठीक है किसी को नहीं पसंद आता तो ठीक है कि, लेकिन नफरत नहीं करनी चाहिए, कि प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्यार मोहब्बत के अंदर मैं आपको चूहा कह सकता हूँ? नहीं, किसी को कि ना गलत कि नाम नहीं लेना चाहिए किसी नहीं ना, मतलब ये कि चूहा मैं आपको नहीं कह सकता। किसी को मैं तो कहता हूँ किसी को कहना ही नहीं चाहिए कि। अच्छा, मसीह मऊद को कह सकते हैं चूहा? कि आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह सकते हैं, कि किसी भी इंसान को ही नहीं कहना चाहिए। ये देखे सीरतुल महदी है, सफा 213 है। इंसान को सीरतुल महदी है, सफा 213 है। सीरतुल महदी है, सफा 213 है। हवाला सुनने बयान किया मुझसे मौलवी रहीम बख्श साहब एमए ने कि उनसे मिर्जा सुल्तान अहमद साहब ने बयान किया कि दादा साहब की एक लाइब्रेरी थी जो बड़े बड़े पटारों में रहती थी, और उसमें बाज़ किताबें हमारे ख़ानदान की तारीख के मुतल्लक भी थीं। मेरी आदत थी कि मैं दादा साहब और वालद साहब की किताबें वगैरह चोरी निकाल कर ले जाया करता था। मिर्ज़ा कादियानी बता रहा है कि मेरी आदत थी कि मैं चोरी किताबें निकाल के ले जाया करता था। चुनाचे वालद साहब और दादा साहब बाज़ वक़्त कहा करते थे कि हमारी किताबों को ये चूहा लग गया है। मिर्जा कादियानी एक तो चोर भी साबित हो गया और दूसरा कि ऐसे लफ्ज नहीं है, कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं। ये मिर्जा कादियानी को आप चूहा या चोर कह सकते हैं कि नहीं? हवाला मैंने दे दी। नहीं, कि ये आप ना जो बात की है ना बिल्कुल ही गलत है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। नहीं, मैंने बात नहीं की, दादा साहब ने की है ना। वो इंसानियत की इज्जत करते थे कि मैंने नहीं पा, और मेरे ते ना पा दे हो, मैं क्यों की है? बोलते ही नहीं थे। और नहीं, मैंने पहले तो ये अपने लफ्ज वापस लेना, मैंने बात की है। मैंने कब बात की है? मैंने तो मिर्जा कादियानी के बेटे की लिखी हुई बात एक सुनाई है पढ़ के। उन्होंने पता क्या कहा था? लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नॉन। किन्होंने कहा था? जो उनके बेटे की आप बात करें ना, कौन से बेटे की? कौन से बेटे की? और आपको बात समझ ही नहीं आई मियाँ? कौन से बेटे ने कहा की बात मैं सुना रहा हूँ? आपने कहा ना हजरत मसीह मौद के बेटे की बात कर। कौन सा बेटा है? बेटे उसके थे और भी थे। कौन से बेटे की? बशीरुद्दीन। नहीं, बशीरुद्दीन की तो बात नहीं मैंने सुनाई, मैं तो बशीर अहमद की सुना रहा हूँ। अच्छा, आप सुनाएं फिर बहरहाल के चले। मिर्जा कादियानी के कितने बेटे थे बशीर नाम के? हेलो, मुझे सारे बेटों के नाम नहीं पता। पता ही तो पता ही कख नहीं है। अहमदी हो ना तुसी? नहीं कि हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वही ना, अहमदी है कि दुनिया दे किसी अहमदी नु मिर्जा कादियानी दी औलाद दा पता ही कोई नहीं होता ना, तो नहीं पता। और नहीं है तुम्हारी मजबूरी नहीं हो, मिर्जा मसरूर नु भी कोई नहीं पता। मैं आपको भी प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार नहीं, वो तो ठीक है। मिर्जा कादियानी के जो बेटा है वो मौजूदा खलीफा है ना मसरूर, उसको भी नहीं पता। हाँ, ये सिर्फ आपकी मजबूरी नहीं है। और रही जो बात ये आप कह रहे हैं ना कि जनाब लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नॉन, एवें ना यबड़ियां मारिया करो हैं। कलमातुल फसल है, सफा 110 है। जो मसीह मौद को नहीं मानता वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारज है। अनवारुल उलूम जिल्द 6 हवाले सुन लो पहले। जिल्द 6 सफा 110। हजरत मसीह मौद का जिसने नाम भी नहीं सुना वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। यही बात उसने अनवारुल उलूम जिल्द 6 सफा 151 के ऊपर भी की है।
ਲਵ ਫਾਰ ਆਲ ਹੇਟਡ ਫਾਰ ਨਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਦੀਆਂ ਜਬੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ मिर्जा कादियानी ने खुद ये नफरतें फैलाई हैं। और वो कहता है कि जो मुझे नहीं मानता वो रंडी का बच्चा, गश्ती का बच्चा, वो गालियां निकालता था लोगों को। ये लफर हाल है। ऐसा नहीं है, किसी को मानना क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? आप कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? मिर्जा गालियां नहीं निकालता था? नहीं नहीं नहीं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी नहीं किया। ये ले सुने फिर, सुने फिर, बस नहीं मानना, सुने ना फिर, सुने ना फिर। रूहानी खज़ैन जिल्द 14 सफा 53 है। दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। ये लफराल है। हाँ नहीं 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 नहीं, आपने पता नहीं क्या सुनाई, मुझे उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, लेकिन ना जो आपको सही है कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आप ऐसी बातें नहीं, आगे सुने, आगे वो कहता है, आगे वो कहता है रूहानी खज़ैन जिल्द 14 सफा 80 के ऊपर वो कहता है कि व इन्नमा नरुद्दु सब्बसाबीना अला वजूहिहिम जज़ाअन लिल मुफ्तारियात। वो कहता है मैं लोगों को गालियां इस वजह से निकालता हूं क्योंकि ये मुझे गालियां निकालते हैं। आप तो कहते नहीं मिर्जा जी गालियां निकालते ही नहीं थे। कभी भी नहीं, वो गाली सुन लेते थे। चलो मैं हवाले दे रहा हूं। आप पता नहीं पता ना पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं जो आप हवाले दे जा रहे हैं। Bro, he's giving you references that Mirza has abused a lot to Muslims, women and men as well. So you can check, you can rectify from your website. नेडा भाई जान के लगे आवे सारा उन्हें सब पता है, सब पता है इन्होंने ड्रामेबाजी लाई होती। अच्छा यार मैं ना चल इधर आ जा रहा हूँ। मुफ्ती साहब मूत्र वाला भी पढ़ जाओ जी, मूत्र कर रहे जरा वाला पढ़ जाओ प्लीज। मूत्र यार तुसी कर लो ना, पहले भी मैनू तुसी बिठाया, मैं काम में मैनू यार ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਤਰ ਪੀਣਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣਾ ਤੇ ਪਖਾਨਾ ਖਾਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਆ ਵੇਖੋ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 18 ਸਫਾ 218। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਖਰ ਤੂੰ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰਾ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ हाँ जी ए पढ़ो जरा। और मूत्र रही लो तू आना देख मिर्जा साहब ते मूत्र पीण दा ते पखाना खाण दा ये तजवीज़ दे रहे ने जेड़े बीमार लोग ने उन्हां लई। तो चीज ही नहीं है का, ऐसी बात ही नहीं है। भाई आप पढ़ लेना खुद। अब ना ऐसी कोई किताब ही नहीं है, आपने पता नहीं कोई गलत किताब रखी हुई है, आपको सही किताब मिल जाएगी। शाही भाई रूहानी खजाइन अभी आप ओपन करें al-islam.org से। पास नहीं है ना, मेहमान दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं। ब्रदर यू कैन रिकंसाइल और मेरे पास अभी ऐसे मोबाइल से ही लगा हुआ हूँ। शाही भाई आप अच्छे भाई हैं, आपको मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज रूहानी खजान दी जिल्द सफा नंबर दसो, हुणे खोल के विखा देने। 218 रूहानी खजान जिल्द 18 सफा 218 उत्थे तंबीह कीती हुई है मिर्जा साहब ने। तंबीह दा क्या मतलब है? ना आपको क्योंकि ऐसी बातें है ही नहीं उधर ना किताबों में। आप जो शो करवा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि पता नहीं आप कहाँ से क्या दिखाई जा रहे हैं। मेरे इनोसेंट भाई है, सारा कुछ है। आप al-islam.org अभी राइट नाउ आप ओपन करें अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल में अभी al-islam.org ओपन करें। नहीं हो सकेगा ना, नहीं अभी नहीं हो सकेगा, मोबाइल से नहीं हो सकेगा। होता है ना, मैंने भी तो उधर सीखी है ना। ओपन करके वहाँ से कल को फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास, ले आऊंगा, क्योंकि अभी कौन सी जल्दी पड़ी हुई है कि ठीक है मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। ठीक होगा शाही भाई, कोई मसला नहीं, कोई मसला। हाँ हमेशा ही हम इधर उधर ही होते हैं, तो आप कर लेंगे कल को, हो जाएगा सारा ठीक हो गया शाही भाई, कोई मसला नहीं। बहरहाल ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। रूहानी खजान जिल्द 18 सफ़ा 218 रूहानी खजान वॉल्यूम 18 पेज आपके पास है ही है, ठीक है फिर मैं अपना ले आऊँगा, तो ठीक है कर लेंगे। ठीक हो गया जी।
पप्पू क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद,